नमस्कार। आपने गांधी जी का नाम तो सुना होगा। कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में हम? आपने मेरा नाम भी अवश्य सुना होगा। इसको आप कैसे अंग्रेजी में कहेंगे? आज जिस पार्ट की हम चर्चा करने वाले हैं वो पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट। भविष्य में कोई काम किसी खास समय में अगर खत्म हो चुका रहेगा, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप कहेंगे कि अगले सोमवार तक हम यह काम कर चुकेंगे, कर चुके होंगे, कर चुकेंगे, तो इसको आप शैल हैव, विल हैव और वर्ब का तीसरा रूप लगा करके इसको बना सकते हैं आप। I shall have finished this work by Monday, by tomorrow, before Monday, before tomorrow, by the end of this month। इस तरह से आप इसको बोलते हैं। तो लेकिन विल हैव और शैल हैव के दो यूज़ हैं। एक तो यूज़ ये है कि फ्यूचर में कोई काम अगर खत्म हो गया रहेगा, जैसे बाय 2022 है ना, 2022 तक यू विल हैव लर्नड स्पीकिंग स्किल, लर्नड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। अंग्रेजी में बोलने की कला अगर 2022 तक आप सीख चुकेंगे तो आप उसको शैल हैव, विल हैव लगा करके बना सकते हैं। क्योंकि शैल हैव का यूज स्पोकन में बहुत कम हो रहा है, तो हम लोग मोस्टली बोलने में विल हैव को ही बोलते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल हैव आप बोलते हैं, है ना। तो ये रहा, देखते हैं एक एक सेंटेंस। सी, इफ यू रियली विश टू progress in spoken English, if you want to speak English confidently, then you must listen more and more, and one more thing is there, you must read more and more. But only reading and listening will not do, okay, will not serve your purpose. So for that matter you need to practice part wise, okay, and for that matter you will have to at least practice, okay, speaking some sentences on particular type of structure. So today structure will be on future perfect. Further also we would be okay, doing such type of exercise on different structure. So let's move, okay, without wasting even a single minute. Bhaiya, come and let us practice, okay? And while practicing, just you enjoy the process. No matter whether you are committing mistake, making mistake, it doesn't matter. See, psychology is everything, thought process is everything. Just have a beautiful thought process, peaceful thought process, thinking that nobody is listening, okay? Of course, what I am trying to do, I am trying to improve myself. That is my mission. And while doing this exercise, you are reaping benefit too, because you are practicing with me, okay? So, two levels benefit, and of course, there is a third level benefit too. If someone is watching this video, they may be benefited, okay, also. So let us move further, and moving to the future perfect, speak English and practice for confidence. Confidence will come only through practice. Yes. Only by watching and listening. Yes, these things are very necessary. Watch movie, okay, go through newspapers or any textbook and listen more and more, okay. Listening is very much needed. Well, let's start. 11 बजे तक, मतलब आने वाले जो समय है, अभी तो 9-10 हुए हैं, तो मान लीजिए 11 बजे तक जो है मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुकूँगा। ये जो वीडियो बन रहा है, दिस वीडियो दैट वी आर मेकिंग, ये वीडियो 11 बजे तक अपलोड हो चुका रहेगा, ओके, यानी हम कर चुकेंगे रहें। तो 11 बजे तक हम लोग इस वीडियो को अपलोड कर चुकेंगे। कैसे कहेंगे? Before 11 a.m. I will have upload this video. Uploaded. Yes. Before 11 a.m. I will have uploaded this video. Very nice. Next sentence है ना, तुम्हारे आने से पहले, अराइवल, तुम्हारे आने से पहले, है ना, हम लोग लंच खत्म कर चुके रहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? Before your arrival, I will have finished my lunch. Yeah. We will have finished my lunch. Yeah, I will have finished my lunch. अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं before your arrival, before you come, okay, है ना, I will have, yeah, we will have finished our lunch, okay. तो आप भी बनाने का प्रयास करें। जब when I am speaking sentence in English, you need to translate, you need to know why translate. Just think in English and speak in English. Don't care for the mistakes कि यहाँ to लगेगा, in लगेगा, at लगेगा, ये लगेगा, उतना नहीं करने का। बस मीनिंग को हमको, if you really wish to speak in English, यदि ग्रामर सीखना है तो this is not grammar class, this is a spoken approach practice, okay. So now, okay, तो हाँ, हमने बना लिया क्या? हाँ। Yes. वह है ना, जब तक तुम अमेरिका से आओगे उसकी शादी हो चुकेगी, उसकी शादी हो चुकेगी,
हाँ, यानी वह शादी कर चुकेगी. She will have got married when you arrive from America. Yes, when you arrive from America, yeah, before your arrival, okay, before you return from America, she will have got married. She will have got married, okay. She will have married, yeah, she will have got married. वह शादी कर चुकेगी before your arrival, okay. तो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, है ना. क्या हम लोग 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कर चुके होंगे? क्या हम लोग 2022 तक इस प्रोजेक्ट को कर चुके होंगे, खत्म कर देंगे? अभी तो 2021 चल रहा है, Yes. है ना. तो Will we have finished our project by 2022? yes, will we have finished our project by 2022, है ना. 2022, ठीक है ना. इसके बाद मैं आशा करता हूँ आप अपना काम कल तक खत्म कर चुकेंगे. मैं आशा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप कल तक अपना काम खत्म कर चुकेंगे. क्या कहेंगे? I hope you will have finished your work by tomorrow. I hope you will have finished your work by tomorrow. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, है ना. कंपनी जो है $3 बिलियन कमा चुकेगी इस साल के अंत तक. कोई भी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है ना, गूगल है, जो भी कंपनी सब है, तो जो भी कंपनी है वो कंपनी जो है कितना तक जो दिया हुआ है ना, इस साल के अंत तक 3 जो है ना $3 मिलियन वो कमा चुकेगी. क्या कहेंगे? यह कंपनी 3 मिलियन, यह कंपनी जो है, ये जो कंपनी है इस साल के अंत तक 3 मिलियन जो है कमा चुकेगी. This company will have earned $3 million. हाँ, by the end of this year. By the end of this year, this company will have earned, है ना. Be slow, don't take a stress, okay. If you start well, you will finish well, okay. Don't run in a hurry, don't be in a hurry. Have confidence, don't stress yourself. So yes, this company will have earned $3 million, whatever you want to say, $3 million by the end of this year, okay. By the end of the next year, by the end of this year, this company will have earned $3 billion, है ना. इसके बाद 2023 से पहले हम लोग एनडीए एग्जाम क्रैक कर चुके होंगे. 2023 से पहले हम लोग एसएससी सीजीएल क्रैक कर चुके होंगे. क्या कहेंगे इसको? We will have cracked NDA exam by the end of 2022. जो भी है ना. We will have cracked the NDA exam, yeah, before 2023. Before 2023, we will have cracked NDA examination, NDA exam, yeah, CGL exam. Okay, next question, है ना. मेरा जो लड़का है वो 2022 तक, है ना, वो क्लास 1 को खत्म कर चुकेगा, यानी पास कर चुकेगा, है ना. My son will have passed class 1 by the end of 2022. Yes, my son will have passed class 1, okay, by 2022, okay. इसके बाद जो है तब तक वह जा चुकेगी, तब तक, है ना, तब तक वह जा चुकेगी. क्या कहेंगे? तब तक, by then. By then she will have left. By then she will have left. By then she will have gone. वो चली गई होगी. By then she will have left from here, from this place. Okay. सरकार जो है ना, समर सेशन से पहले बिल को पास कर चुकी होगी. सरकार समर सेशन से पहले, समर सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन, ओके, मॉनसून सेशन, ये जो पार्लियामेंट में चलते हैं, सरकार समर सेशन से पहले बिल को पास कर चुकेगी. मतलब उस समय तक ये काम हो चुका रहेगा. The government will have passed the bill before the summer session. Yes, the government will have passed the bill before summer session. Okay, season भी कह सकते हैं, बट 7 पार्लियामेंट में सेशन चलता है तो इसके बाद जो है कल तक हम लोग टेंस खत्म कर चुकेंगे. We will have finished the tense by tomorrow. Yes, we'll have finished. Will have. जब आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही बोला जाए. ऐसे will have.
मतलब उसमें आ गया विल हैव फिनिश्ड है ना टेंस बाय टुमारो, विल हैव फिनिश्ड टेंस बाय टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स, एक और यूज जो होता है आप जानते होंगे, गांधी का नाम तो तुमने सुना ही होगा, है ना, क्या कहेंगे, गांधी का नाम तो तुमने सुना ही होगा। You must have heard the name of Gandhi. हाँ, you must have heard, okay, you must have heard the name of Gandhi। जरूर सुना होगा को हम ऐसे बोलेंगे you must have heard the name of Gandhi, बट सिंपल में हम लोग बोलेंगे you will have heard, तुमने सुना होगा you will have heard the name of Gandhi, you will have heard ना my name, you will have heard my name, okay, who doesn't know my name, you will have heard my name, okay, you must have heard my name if you are living in this locality, as you are telling you Anna, you have been living around this locality, so you must have heard my name, you must have heard my name if you are living in this area, you must have heard my name, you must have heard the name of Daud Ibrahim, like that, है ना। तो यही है ना, आपने 1857 की लड़ाई के बारे में जरूर सुना होगा, है ना, क्या कहेंगे, You must have heard about the heard, you must have heard, you must have heard the war of 1857. you must have heard about the battle of, है ना, you must have heard about the battle of 1857, okay, yes, when you commit a mistake, see, while committing mistake, if you are obsessed with your mistakes, this shows you have to break this mental psychology, this is mental psychology which is much needed to be broken, okay, we need to break this mental psychology. Yes, everybody makes mistake, what is the problem with the making mistake, okay, everybody can make mistake, and we must be enjoying making mistakes, okay, and with the time the improvement comes, nobody makes progress within few days. So don't be obsessed that I did mistake तो क्या हो गया, okay, we lost India, okay, we lost India, we have lost our life, making mistake, what does it mean, what is the meaning, है ना, कुछ नहीं है, it's so simple, yes, everybody is making, I am making mistake, you would be making mistake, so आपने, है ना, तो वही है कि आप वर्ड को ले लेते हैं, है ना, तो हम जब जरूर तुमने जरूर गांधी का नाम सुना होगा, तो यू मस्ट हैव इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द बैटल ऑफ 1857, ओके, यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, ऐसे करके, और सीधा सुना होगा, मतलब हम मानते हैं कि आपने ये, आपकी नज़रों में ये काम हुआ है। अगर जो बोल रहा है जो आदमी, उसको लगता है कि ये आदमी ये तो जानता ही होगा, इसने सुना ही होगा, इसने देखा ही होगा, तो कहेंगे ओ यू मस्ट हैव सीन द ताजमहल, ओके, यू विल हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल तुमने देखा होगा, आई होप सो, क्योंकि मुझे लगता है यू विल हैव सीन द ताजमहल, ओके, और अगर कोई काम खत्म कर चुकोगे तो आई होप यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक तुम खत्म कर चुकोगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर कर्ता के नज़रों में अगर लगता है कि ये काम वो कर चुकेगा, तो विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, और इसके बाद अगर जोड़ देना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी, यू मस्ट हैव हर्ड, है ना, अबाउट द बैटल ऑफ 1857, लाइक दैट। आज के जो ये पेपर में जो वर्ड थे, हाइक, है ना भैया, क्या सब वर्ड थे, स्पाइक, हाइक, सर्ज, एक्सिलरेट, गो अप, इंक्रीज, ये सारे का मतलब होता है बढ़ना, ओके। स्पाइक होता है किसी चीज़ में तेज़ी से अगर मान लीजिए वृद्धि हो जाती है, यानी जैसे इन्फ्लेशन में स्पाइक आया, तो कोई ग्राफ है अगर ऐसे चढ़ गया तो स्पाइक हो जाएगा वो। हाइक भी होता है कि कोई तीव्र गति से अगर प्राइस किसी चीज़ का, कमोडिटी का बढ़ गया मान लीजिए बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, तो हाइक कहते हैं। सर्ज भी वही है, प्राइस सर्ज हो गया, पेट्रोल का प्राइस हाइक हो सकता है, सर्ज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी कमोडिटीज़ का प्राइस जो है सर्ज होता है। प्राइस में ये सारे चीज़ जो है, ये स्पेशली हाइक और सर्ज जो है, ये प्राइस में वृद्धि जब होती है तो हम लगाते हैं। एक्सेलरेट, तो प्राइस हाइक अगर होता है तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो दो फैक्टर्स, वो जो फैक्टर होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं, मान लीजिए, है ना, अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, तो उस फैक्टर्स की वजह से प्राइस जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स विल एक्सेलरेट द प्राइस, ओके, एक्सेलरेट द प्राइस एंड एक्सेलरेट, एंड वो एक्सेलरेट करेगा तो हाइक आएगा, सर्ज आएगा। गो अप भी कहते हैं, बढ़ना को इंक्रीज भी कहते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि ये सेशन ठीक रहा, है ना, फिर अगले सेशन का इंतजार रहेगा, कल हम लोग फिर लाएंगे। थैंक यू।